Hello, sweet learners. You're most welcome in the channel Career Exam Idea. Today we start a new topic of class 7 history and chapter number 1. And topic is tracing changes through 1,000 years. The chapter is so long. So in this video we will discuss about the introduction of the chapter. I hope this video will be useful for you. Please like and share the video. So student, first let's understand the topic tracing changes through 1,000 years. This is our topic and what we discuss in this topic, 1000 वर्षों के दौरान जो परिवर्तन हुए उनकी पड़ताल करना. Which changes happened during the 1,000 years? So first let's understand which 1,000 years. पहले हमें आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि वो 1000 साल कौन से हैं, कब से शुरू होते हैं और कब तक रहते हैं. So let's understand first the period from the second half of the 8th century up to first half of the 18th century is known as the medieval period of Indian history. So we now understand that these 1,000 years which led changes we will discuss in this chapter about to 8th century to 18th century. अब 8th century से 18th century तक 1000 वर्ष हो गए और इन 1000 वर्षों के बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे क्या मेजर चेंजेस आए और इसको इतिहास में मध्य काल के नाम से जाना जाता है, मिडाइवल पीरियड. एंड स्पेशली दिस पीरियड belong to Mughal emperors. So what changes during Mughal period we will discuss in this chapter. ऐसा नहीं कि सिर्फ मुगल ही यहाँ के थे, लेकिन दिल्ली में उस समय जो लगभग जो है मध्यकाल में मुगलों का शासन हो गया था. 8th सेंचुरी में तो अनेक राजपूत राज्य थे, लेकिन जब हम 18th सेंचुरी तक चलते हैं तब हम यहाँ मुगल शासन देखते हैं. तो इन राजपूत शासकों और मुगल शासकों के बीच में क्या परिवर्तन हम विश्व इतिहास में देखते हैं, ये हम इस अध्याय में देखेंगे. कौन कौन से वो परिवर्तन है. So we first understand the changes through the map. This is map first, and this map prepared by Al-Idrisi, an Arab geographer. And when he made this map 1154 ईस्वी में. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दिस वाज द फर्स्ट वर्ल्ड मैप. This section is detail of the Indian subcontinent from this larger map of the world. तो ये वर्ल्ड मैप में इंडिया की पोजीशन इसमें दिखाई गई है. So students, that is very important to learn. Who prepared first map of India? Al-Idrisi, and Al-Idrisi belong to Arab. And now other side you can see this is the map second, and map second was made by a French cartographer in 1720. So let's understand the changes between two maps. When we compare map first to map second, we saw many changes. Map first and map second represent two different times. First map was made in 1154 ईस्वी में जो बनाया गया था, ये पहला मैप था और इसमें देखिए हमें कुछ भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है. बट सेकंड मैप इज मोर सेम एज टुडेज इंडिया. तो यहाँ पे देख सकते हैं धीरे धीरे इसमें लगभग जो है 600 इयर्स का डिफरेंस हम लोग देख सकते हैं दोनों मैप के बीच में. इसमें इन परिवर्तनों को तो ये देखिए मैप
में के अंतर्गत हम पहला जो चेंज देख रहे हैं, वाइड चेंज देख रहे हैं, वो मैप के अंदर देख रहे हैं। और इस मैप के द्वारा और भी कुछ चीजें जानने की कोशिश करेंगे, जिनसे हम परिवर्तनों को आसान भाषा में समझ सकते हैं। Student, first we let's to understand what changes happened during 600 years with the comparing of two maps. As you know, first map made by Al-Idrisi, which was our geographer, and second map made by a French cartographer. अब देखिए ये एक पहला तो जो है अरब जगत से बिलोंग करता है और दूसरा फ्रेंच यानी यूरोप से संबंध रखता है। तो इन दोनों के कारण ही यहाँ पे हम बहुत सारे परिवर्तन इसमें देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बोथ मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इवन थो दे रिप्रेजेंट द सेम एरिया। व्हिच वाज द सेम एरिया? द सेम एरिया वाज इंडियन सबकॉन्टिनेंट। दिस मैप आल्सो शो इंडिया एंड दिस आल्सो सेकंड मैप आल्सो शोइंग द इंडिया। दोनों ही इंडिया को शो कर रहे हैं, ये भी इंडिया है और ये भी इंडिया है। लेकिन देखिए दोनों के पिक्चर को जब आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस इसमें है। इन मैप फर्स्ट वी फाइंड साउथ इंडिया एट द पैलेस वेयर द we would accepted to find North India and Sri Lanka is the island at the top। जो आप फर्स्ट में देख रहे हैं, देखिए ये यहाँ पे ये नॉर्थ साइड है, लेकिन यहाँ पे इस नॉर्थ साइड में किसको दिखाया गया है और ये साउथ साइड है। लेकिन साउथ इंडिया जो इस सेकंड मैप में जो साउथ इंडिया है और ये जो श्रीलंका है इसको नॉर्थ की तरफ दिखाया गया है। क्यों? उस समय इनके पास इतना नॉलेज नहीं था, इन्होंने इनकी बड़ी तारीफ करनी होगी कि फिर भी इन्होंने जो है इंडिया का मैप बनाया वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में। तो ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस देख सकते हैं। यहाँ श्रीलंका जो है टॉप की तरफ दिखाई दे रहे हैं और हम आइडेंटिफाई करने में भी असमर्थ है कि कहाँ श्रीलंकन आइसलैंड है। चिल्ड्रन, यहाँ जो मैप सेकंड है, मैप सेकंड में तो हमें स्पष्ट रूप से श्रीलंकन आइसलैंड दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए 600 ईयर्स के दौरान कितना परिवर्तन हो गया, यहाँ पे स्पष्ट रूप से हमें श्रीलंकन आइसलैंड दिखाई दे रहा है। और जो पहले साउथ साइड में वो पहले साउथ साइड में और मैप भी लगभग जो है आधुनिक इंडिया जैसा दिखाई दे रहा है। The palace names are in Arabic. Second difference between two maps is language related. The first map में जो लैंग्वेज है वो अरेबिक लैंग्वेज है, बिकॉज जो अल-इदरीसी थे वो कहाँ से बिलोंग रखते थे, वो अरब जगत से बिलोंग रखते थे, इसलिए उसमें ये परिवर्तन आया। और सेकंड में जो है किसी ने लिखा था, फ्रेंच कार्टोग्राफर ने लिखा था, तो उन्होंने जो ये नाम लिखे वो किसी भाषा में लिखे, इनके नाम जो है इंग्लिश भाषा में। ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं। ये दूसरा जो है परिवर्तन इन दोनों में लैंग्वेज को लेकर के आया। और थर्ड आएगा सम फैमिलियर पैलेसेस लाइक कन्नौज इन उत्तर प्रदेश हैव बीन स्पेल्ड एज कन्नौज। देखिए कन्नौज उस समय जो है मिडाइवल काल में एक बहुत महत्वपूर्ण सिटी था बच्चों, और इसके नाम की स्पेलिंग में हम लोग अंतर देख सकते हैं। अल-इदरीसी ने ये वाली स्पेलिंग लिखी है और आज इस तरह की स्पेलिंग है। इसी तरह हो सकता है फ्रेंच का जो कार्टोग्राफर है उन्होंने भी जो में जो नाम लिखे हैं वो वर्तमान समय में चेंज हो गए हो। In comparison to this map, second was made nearly 600 later after map first। तो इन दोनों के बीच में इतना अंतर आने का कारण ये कि मैप सेकंड और मैप फर्स्ट में जो है 600 years का अंतर है। By that time, information about the subcontinent had changed a lot. This map appears to be more familiar to us. The coastal areas particularly are more detailed। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं हमें ज्यादा इस कॉन्टिनेंट के बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन कैसी मिल गई थी ड्यूरिंग जब ये 18th सेंचुरी में लिखा गया, में बनाया गया, उस समय बहुत से यूरोपियन जो थे ये सी रूट से क्या आने के इंडिया में आ रहे थे ये यूरोपियन, और इंडिया में यहाँ ट्रेड करने के लिए अपने व्यापारिक छावनियां बना रहे थे, जिससे इन लोगों को इंडिया के बारे में जब ये जर्नी करके वापस जा रहे थे इंडिया के कोस्टल्स के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी हुई। और जैसा कि यहाँ दिखाया गया कि द कोस्टल एरिया इज पर्टिकुलरली
आर मोर डिटेल्ड। ये इनके बारे में ज्यादा जानकारी इसलिए मिलती है क्योंकि यूरोपियन ट्रेडर्स जो है इन कोस्टल एरियाज के द्वारा ही जो है एंट्री करते थे। यहाँ पे जो पोर्ट थे उन पोर्ट के थ्रू आते थे। आपको पता है सबसे पहले जो यूरोपियन आया वो वास्को डी गामा था और वो गोवा में, वर्जिन गोवा में कालीकट पोर्ट पे आया था। तो इससे क्या हुआ, वो आया था 1498 में आया था। इस तरह उस मैप के समय से यहाँ बहुत ज्यादा जानकारी यूरोपियन लोगों को इंडिया के बारे में हो गई थी। देखिए यहाँ पे इस मैप में गंगा रिवर को भी दिखाया गया है और इसमें इसकी ट्राइब्यूटरीज को भी यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए इसकी ट्राइब्यूटरीज है और ये बे ऑफ बंगाल है। तो ये लगभग जो है सेकंड मैप जो फ्रेंच कार्टोग्राफर द्वारा बनाया गया है वो बिल्कुल आधुनिक इंडिया से मैच करता है। इसमें हमारे जो नेबरिंग कंट्री है उनको भी दिखाया गया है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि समय के साथ बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं। बहुत से पैलेस उनके नाम चेंज हो जाते हैं, लैंग्वेज में चेंज हो जाता है। ये हमें इस मैप दोनों मैप की तुलना करने पर समझ में आता है। मैप सेकंड मेड बाय फ्रेंच कार्टोग्राफर। सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीन ऑफ कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर को हिंदी में कहते हैं मानचित्रकार। A person who makes map is called cartographer. Students, this definition may be asked in your examination, so understand this is term very carefully. मानचित्रकार कौन होता है? जो मानचित्र बनाता है उसे हम मानचित्रकार कहते हैं और इंग्लिश में इसे हम कहते हैं कार्टोग्राफर। So students, once we revise the introduction, maps, what we learned in this video about the maps. First, maps shows the changes that happen throughout the years. मैप से हमें क्या देखने को मिला कि कंटिन्यू जो है भौगोलिक स्थानों में परिवर्तन होता रहता है। However, the maps were not constant always in the history. मतलब हमेशा जो है मैप एक जैसे नहीं होती। इतिहास में जो है स्थान और पैलेस उनका एरिया बदलता रहता है। The accuracy of map differs throughout the period. ये भी हमने देखा मैप फर्स्ट और मैप सेकंड में। देखिए 600 ईयर्स के दौरान बहुत सारी परिवर्तन भौगोलिक पैलेस में हमें देखने को मिला। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा जो मैप बनाया गया वो एक्यूरेट होता है। Changes in names of geographical places can also be traced through historical map. ये हमने देखा कन्नौज के नाम को लेकर देखा, कन्नौज की स्पेलिंग वर्तमान में क्या थी और उस समय कन्नौज की स्पेलिंग क्या थी। तो ये हमें मैप के माध्यम से देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ आपको ये इंट्रोडक्शन पसंद आया होगा। आपकी इससे रिलेटेड और भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं।